Gandhiji had said, "Look at the sparrows. They do not know what they will do in the next moment." So, let us literally live from moment to moment, like the sparrows, because living in the present moment is important, as there is no point in worrying about the past and being anxious about the future. And this is the theme for the session. Please allow me to welcome our esteemed speakers. Professor Apurva Nand was born in Siwan, Bihar. He is the author of the books Sundar Ka Swapna and Sahitya Ka Ekant. His critical essays have appeared in all major Hindi journals. He also contributes columns in Indian newspapers and magazines on the issues of education, culture, communalism, violence, and human rights. Mr. Vivek Shukla is a veteran bilingual journalist, historian, and a researcher who has contributed over 1,500 articles on contemporary issues in almost all the leading newspapers of India. He is currently working on a book on forgotten architects of New Delhi. He is a columnist for Navbharat Times, Dainik Jagran, and is actively involved with several social and educational organizations of the capital. Mr. Sopan Joshi has written and edited for several daily, fortnightly, and monthly publications where he reported on issues like agriculture, science, environment, forest, and water preservation. Sir has also written many articles on politics, automobiles, and travel. At present, he is a freelance writer and editor. Shri Ashok Vajpayee, who is a major cultural figure of India with several books of poetry, critique, and art to his credit. He is widely recognized as an outstanding promoter of culture and an innovative institution builder. He has been awarded the Sahitya Akademi Award, the Dayavati Kavi Shikhar Samman, and Kabir Samman. He was also awarded Doctorate of Literature by the Central University of Hyderabad and has been decorated by the President of the Republic of Poland and by French government. We would now like to request Shri Ashok Vajpayee to kindly take the session forward. Well, friends, we have picked up many of the thematic titles of the discussions from utterances of Gandhiji himself. Apuranand helped me in locating those utterances. And the one for this is, look at the sparrows. Now, in a letter to Miraben, Gandhiji, in August 29th, 1947, wrote, "My moment has become uncertain. Look at the sparrows. They do not know what they will do the next moment. Let us literally live from moment to moment." He also had said before, "For me, one step at a time." He was in Kolkata, he was in Noakhali, he wanted to go to Punjab but came to Delhi. Now, to say that one has to live in the present moment is being said by a leader who had planned the future of India, in a sense, had struggled for it, and he had led a whole mass movement. And yet he is saying, live in the present moment. Is there a contradiction in that? Is there something which is deeply enigmatic? Why should Gandhi be saying towards the last stage in his life, live from moment to moment? Is there an element of despair? Is there an element where
he is assuming huge uncertainty. Uncertainty which is born out of freedom of India, but its partition. Uncertainty which is born out of the various riots which were taking place on both sides. Uncertainty of what would happen to a partitioned country. Uncertainty about what kind of India is going to emerge. Is that uncertainty weighing heavy on him when he said, forget about what's going to happen, let's live intensely in the moment itself? It is also perhaps a call not to be deluded by promises of future. We have these days all kinds of promises being showered on us. Promises which we all know will never be fulfilled. And yet, we are being showered with those promises. And is he trying to say that don't be deluded by this, live in the present moment? What is present is more tangible, more plausible, more possible than what is being promised. Let us also recall that Gandhiji also said, merit is in fighting alone, be the opponent one or many. He was fond of Rabindranath's famous poem, Ekla Chalo Re. He was not afraid of being alone. He was not being afraid of left alone. And perhaps as he was moving from Calcutta to Delhi, he was literally living from moment to moment. As you know, that a few days after he arrived here, he was to be assassinated. Here was an India, a free India, which could not tolerate Gandhi, even for 6 months. So there is I suspect, a tragic note, perhaps a warning, perhaps an anticipation that makes him say, live like sparrows. Thank you. Oh, okay. Yeah. I thought that lady, in any case, she is not heard. These ladies who come to the mic should better know. They are from Management Institute, how to handle mic to be heard by the audience. Anyway, well, we have 3 persons who cannot be accused of living from moment to moment, but still will have something to say on this somewhat enigmatic themes. As you know, Gandhi was very fond of Bible. He was very deeply, shall we say, educated in Bible. And at the slightest provocation, he would quote a phrase or something from the Bible. So this, and like Bible, which had several quotable quotes, like all other religious scriptures, he is making a statement, live like sparrows. Now let's start with Sopan Joshi. What do you make of this in terms of Gandhi, of course? And let me put it, Gandhi was a sparrow which was shot in the skies of Delhi. In fact, on the ground of Delhi rather than the sky. And he was shot when he was going to a prayer meeting. Yes. Thank you so much, Ashokji. Is this on? Yeah. Okay. Thank you so much, Ashokji.
Mic has almost to be kissed, you know, I mean, just. I was hoping to get a tutorial. Yes, Gandhiji was killed in Delhi. Gandhiji was killed in Delhi, but it wasn't a resident of Delhi who killed him. I think at least that weight can be taken off us occupants of the city today. Moment to moment. How much time do you need? How much time do you need? Okay. You have lost 1 minute already. That was the plan. He's a man of contradictions to start with. He's an extremely shy young boy who turns into an extremely shy young man who actually turns catatonic the moment he's standing up to argue his case in the court. And he's written about this in his autobiography that it was only in his years in South Africa that he acquired some kind of confidence to talk in front of people. He said, even so, I've never actually entirely been confident about public speaking, and he says it's helped me quite a lot. Now, this is a man who's left behind 97 volumes. So, How many thousand pages? about 50,000. And this is the stuff that has been compiled. The uncompiled stuff is... So he's a man of contradictions all through. He, for a man who's that shy and who's, for some reason, he gets sucked into public life in South Africa. And his turning into a public figure is also, I mean, those stages when you read about that, you know, in Satyagraha in South Africa or his autobiography, you realize what a transformation this is. I think he had this moment-to-moment ability in him very early on. Because without being that light-footed, he couldn't have done what he did, especially given how, how awkward and maladjusted he seemed to be as a young man. And that moment-to-moment attitude actually served him well. What also needs a bit of stress here is he doesn't have an ideology. And he didn't leave behind an ideology. There is no Gandhiism. We can turn it into what we want, but he didn't leave behind an ideology, and he wasn't following one either, which meant that it was very easy for him to hop and skip. And for those of you who like cricket, batsmen who are quick on their feet tend to be good against aggressive fast bowling. They can move out of the way, they can get in line of deliveries pretty quickly, and you see him do this all the time. He has values, but he doesn't have an ideology. He sticks to his values right through his life, but the ability to hop and skip and live moment to moment is what brings him a lot of, it gives him a practical edge that a lot of leaders do not possess because they tend to be set in their ways. And here's a man who can very quickly change with the times. Now that means, is there something holding him together, or is he just a flash in the pan? He isn't, because what is holding him together are values. That's a very important lesson that we tend to forget. A lot of discussions on Gandhi these days are held among people whose primary interest is politics, and they're people who come from disciplines of classical studies. Gandhi wasn't a classical scholar, and Gandhi wasn't a professional politician. He carved his own path. He could do that because other than his values, everything else was malleable. He could, it's
It's one of my favorite stories. He was living in Jahangir Patel's house in Bombay, and one of the servants, one day Miraben goes and opens they had a refrigerator there, Jahangir Patel, of course. So there's raw meat right there. And Miraben throws a fit and says, what is this? And Bapu's here, and Jahangir Patel quickly comes there and calls the servant, says, what happened here? And the servant says that one of the servants wasn't aware that Gandhiji is here, and he brought the raw meat for the dogs. And while this palaver is unrolling, Gandhi walks in and says, Kya ho gaya? And he's told. So he goes to Miraben and says, we are in somebody else's house. In somebody else's house, we live by their rules, not ours. And then he opens the fridge, sees the meat. There is a bowl of grapes right next to it, picks out one grape, eats it just to make a point, and walks off. For those of you who've seen his ashram in Sevagram, the guest house for his more adventurous friends who did not follow the norms of the ashram is outside the limits of the ashram. It's right next to Bapu Kuti though. So people who lived there did not have to follow the rules of the ashram, right? And there were people who liked a cheroot, there were people who liked to smoke. I don't want to take any names here. These activities have been vilified. There were people who liked to drink, and they stayed close to him. They were right there, but they were outside the ashram. Now, what kind of a man does all this? What kind of a man constantly finds ways to diffuse a situation? 1924, the Congress session is happening. The president, I believe, is Muhammad Ali, who has just come back from Punjab, where he's made a statement that the most corrupt and fallen of Muslims is better than Mohandas Gandhi. And the Congress session is about to begin. So one of the Congress members from Punjab has put in a motion for no confidence for the president. Motion comes up. Now, Gandhi, by this time, is a serious figure, 1924. So he says, may I say something before the motion comes up? And who's going to say no to him? So he says, I think this motion should be withdrawn. Why? He says, look, first of all, he didn't insult me, he was giving his own opinion. There were no swear words involved. He was giving his opinion, which is fine. And then he says, the fact of the crime is in its victim. If there is no victim, there is no crime. I don't feel victimized. So what's the crime here? Now it goes a step further. This man still argues his case and he says, listen, you're a friend of mine, aren't you? He says, yeah. He says, friends are not there to support each other in good times. Friends are there to tolerate each other in the most horrible of times. So you have to tolerate me now sit down. Our man has no response to it. I can just go on and on and on with these examples of every time that, and I think this also feeds into that incredible sense of humor that he possessed. Because he's not a very smart man. See, he's not somebody who can come back with one-liners because he's comfortable sitting on a stage holding forth. He's not, clearly. He's awkward. He's socially maladjusted to begin with. He's okay in groups. But a man like this, how does he acquire the razor-sharp wit that he had? How does he say, the king was wearing enough for the both of us? How does he have all these lines which keep finding new relevance in our age of Twitter? And there are all kinds of people who make claims that he would have been a great success in social media. They should reread his autobiography. Social media, he's most of the time trying to avoid attention in some way or the other. This also feeds into, a lot of the criticism that Gandhi gets. This is my last minute. A lot of the criticism that Gandhi gets comes from varying ideological positions
And one of the reasons that criticism cannot sustain is because our man is not working from or talking from an ideological position. Our man is light on his feet, hopping and skipping, much like a sparrow. My time is up. Thank you. Well, Vivek Shukla is a journalist, a bilingual journalist, who has also done work on Gandhi in Delhi. In fact, he has published a book, all the places that Gandhi lived in. In fact, in a manner of speaking, Gandhi flew like a sparrow. Delhi was not his city. In fact, Gandhi had no city. He only lived in places for a while. And in this book, he'll tell us something about how he feels in the matter, whatever the matter is. सर मुझे लगता है कि वैसे तो प्रादेशी उनका था, लेकिन 1915 में आने के बाद शायद सबसे ज़्यादा दिन वो दिल्ली में गुजारे उन्होंने, 700 750। और उसके बाद 9 सितंबर को दिल्ली आते हैं 1947 को। सर ने बहुत काम भी किया है उन पर। शादरा रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं और पंजाब जाना था लेकिन उतर गए। दिल्ली उनके लिए नौखाली पार्ट 2 है मुझे लगता है। नौखाली में वो हिंदुओं को बचाते हैं और दिल्ली में आके वो मुसलमानों को पक्ष में उनको बचाने की कोशिश करते हैं। और जब 3-4 महीने तक कुछ बात नहीं बनती तो वो 12 सितंबर को ऐलान करते हैं कि वो उपवास पे जा रहे हैं। 13 तारीख को उपवास पे 78 साल के गांधी जी जाते हैं और 18 तारीख और उसका असर होता है, पूरी दिल्ली शांत हो जाती है, दंगे बंद हो जाते हैं और 18 तारीख को वो अपना उपवास समाप्त करते हैं। 27 तारीख को सर वो फिर महरौली जाते हैं। महरौली में हाजी बख्तियार काकी की दरगाह को ध्वस्त किया गया होता है। वहाँ पे वो जाते हैं और सुबह 8:30 बजे जाते हैं। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, वो जाते हैं, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं और मुसलमानों को कहते हैं कोई नहीं जाएगा। और करीब 1 घंटे वहाँ पे रुकते हैं। और दिल्ली सच में बड़ी अनग्रेटफुल शहर रही गांधी जी के लिए कि वहाँ पे कोई प्लाक नहीं लगा हुआ कि ये बता सके कि गांधी जी का इस शहर से क्या रिश्ता, उस दरगाह से क्या रिश्ता रहा। तो उससे पहले ये तो एक था और 3 दिन के बाद उनको जो हुआ वो सबको पता है। और दिल्ली मुझे कभी कभी लगता है कि गांधी जी सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे। दिल्ली में वो एक ऐसा शहर है, दिल्ली में गांधी जी को हम अध्यापक के रूप में भी देख रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर में वो जाते हैं, रहते हैं 1946 में 214 दिन। और सर वहाँ पे वो बच्चों को, वाल्मीकि मंदिर के बच्चों को इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते हैं। और उसी क्रम में वहाँ पे वाल्मीकि मंदिर के बच्चे ही नहीं आते, उनके माँ बाप भी आते हैं, हारकोट बटलर स्कूल के बच्चे भी आते हैं और DTA स्कूल के बच्चे भी आने लगते हैं। गांधी वहाँ पे अध्यापक के रूप में होते हैं और शाम को अवश्य क्लास लेते थे बच्चों के साथ। कई बार लुईस फिशर को रुकना पड़ता था क्योंकि लुईस फिशर जब वहाँ पे अपनी गांधी जी की जीवनी पे काम कर रहे थे तो रुकना पड़ता था कि वो क्लास पूरी हो जाए, उसके बाद ही गांधी जी मिलते थे। तो गांधी जी यहाँ पे अध्यापक के रूप में भी देख रहा हूँ मैं गांधी जी को। गांधी जी उससे पहले मंदिर मार्ग का गांधी जी के लिए बड़ा गहरा रिश्ता रहा। उसके 1939 में GD बिरला उनसे कहते हैं, बिरला परिवार उनसे कहता है कि आपको बिरला मंदिर का उद्घाटन करना है। गांधी जी कहते हैं कि ठीक है मैं करूँगा, लेकिन एक शर्त है। गांधी जी ने कहा कि वहाँ पे किसी के प्रवेश पर निषेध नहीं होगा। इसका मतलब है कि दिल्ली तक में उस टाइम मंदिरों में दलितों के प्रवेश पे, हरिजनों के प्रवेश पे रोक रहती होगी और उसका असर हुआ। अभी भी बिरला मंदिर में आप देखेंगे कि एक प्लाक लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसी के प्रवेश पर निषेध नहीं है, किसी पे रोक नहीं है। और मुझे लगता है गांधी जी दिल्ली में अगर धार्मिक स्थानों की बात करें तो 2 ही बार गए और वो भी विशेष कारणों से। हाजी बख्तियार काकी की दरगाह में गए और एक बार बिरला मंदिर में गए और दोबारा फिर कभी नहीं गए। हालांकि वो बिरला मंदिर में रहते रहे, वाल्मीकि मंदिर में रहे, लेकिन दोबारा नहीं गए। और दिल्ली में उनके फुटस्टेप्स हर जगह हैं।
जामिया मिलिया उनके आशीर्वाद से बनता है। और वो अपने हरीलाल के पुत्र को, रसिक को, जो उनके साथी रहते थे, वहाँ पे उसको एडमिशन दिलवाते हैं। उस टाइम जामिया जो है करोल बाग में था, और रसिक जो थे वो दरियागंज में डॉक्टर अंसारी के घर में रहते थे। और गांधी जी करोल बाग में टिबिया कॉलेज के उद्घाटन में जाते हैं, मतलब उनकी वजह से उद्घाटन एक दिन विलंब होता है। उस दिन जाते हैं, उस दिन मौन होता है, लेकिन उनका वो जो भाषण है वहाँ पे पढ़ा जाता है। गांधी जी चप्पे चप्पे पे दिख रहे हैं। उससे पहले वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज और गांधी जी का जो संबंध है वो मुझे लगता है कि दिल्ली शुड ऑलवेज गो टू सेंट स्टीफेंस कॉलेज, कि गांधी जी को उन्होंने होस्ट किया। गांधी जी 1918 में भी गए वहाँ पे, C.F. एंड्रूज और S.K. रुद्रा के आग्रह पे वो गए भी थे। उसके बाद फिक्की भी उनके ही आशीर्वाद से बनता है। उनसे G.D. बिरला, लाला श्रीराम जी और ये सब लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी एक संस्था क्यों नहीं बनाते जो आपके हितों के लिए लड़ाई लड़े। तो वो फिर फिक्की की स्थापना होती है, और 1932 में फिक्की का जो सेशन होता है उसमें वो गांधी जी जाते हैं और ट्रस्टीशिप की सारी वो बात करते हैं। तो गांधी जी को मैं हर जगह देख रहा हूँ। और दंगों के समय तो गांधी जी चप्पे चप्पे पे, मतलब ये पहाड़गंज, करोल बाग, दरियागंज में जो विशेष रूप से प्रभावित इलाके थे, महरौली में बार बार जाते हैं। वो महरौली में बार बार जा रहे हैं। और इसी तरह से वो जामिया के लिए भी, जामिया के ऊपर आर्थिक संकट आया तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसके लिए भीख मांगूंगा। और ये जब गांधी जी ने इस तरह का जब बोला कि मैं इसके लिए भीख भी अगर मांगनी पड़ेगी तो मैं भीख मांगूंगा, तो उसके सामने संकट खत्म हुआ। और जमनालाल बजाज जी ने और G.D. बिरला परिवार ने उसकी मदद की। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गांधी जी जो हैं, एक वाल्मीकि मंदिर का मैं जिक्र मुझे ज़रूर लगता है कि ज़रूर करना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर वो वाल्मीकि मंदिर में रहते तो शायद सुरक्षित रहते। वाल्मीकि मंदिर में गांधी जी पे कभी हमला नहीं हुआ, और वाल्मीकि मंदिर से उनको बिरला मंदिर लेके जाया गया कि वो सुरक्षित जगह है। वहाँ पे उनके ऊपर बार बार हमला होता है। 20 तारीख को होता है, और 20 तारीख के बाद भी जो उनकी सुरक्षा कड़ी की जाती है, 30 तारीख को उनकी सुरक्षा में एक भी व्यक्ति नहीं होता। जो भाटिया नाम के जो सज्जन थे, जो पुलिस अफसर थे, जो उनके साथ प्लेन क्लोथ में रखे गए थे तुगलक रोड स्टेशन के, वो उस दिन छुट्टी पे थे। तो गांधी को हमने मरने दिया, और उस दिन उनके पास कोई था ही नहीं व्यक्ति जो तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये सच में बहुत एहसान फरामोश शहर है दिल्ली, कि गांधी जी को उसने मारा, को मारने का पूरा मतलब अवसर दिया। धन्यवाद सर। अपूर्वानंद, शुक्रिया। जैसे अशोक जी ने कहा कि यह जो टुकड़ा है, लुक एट द स्पैरोज, यह दरअसल गांधी के खत से लिया हुआ है। और यह खत गांधी लिखते हैं मीराबेन को। मीराबेन जो गांधी के मित्र हैं, शिष्या हैं, और वे जगह जगह भटकती रहती हैं। और गांधी की आलोचना मीराबेन को यह है, वे जाती हैं उत्तरकाशी और फिर वे गौशाला खोलती हैं। गांधी उसका नाम भी सुझाते हैं, लेकिन फिर गांधी मीराबेन को यह कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम में धीरज नहीं है, और तुम गायों को पालते हुए कहीं फिर ऊब ना जाओ, तो फिर से गायों का बुराई होगा। लेकिन मीराबेन जब उन्हें खत लिख के पूछती हैं उनके बारे में कि उनका अगला कदम क्या है, उस वक्त गांधी कलकत्ते में हैं। और कलकत्ते में क्यों है ये हम सब लोग जानते हैं। और गांधी ये लिखते हैं कि गौरैयों को देखो, और इससे तुम्हें अंदाज होगा कि मेरा अगला दिन कैसे गुजरने वाला है। वे कहते हैं कि तुम्हें अखबारों से मालूम होगा कि मैं कल कहाँ हूं, और इसलिए मुझसे यह ना पूछो कि मेरा अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन लुक एट द स्पैरोज, जैसा अशोक जी ने बताया कि बाइबल की एक उक्ति है, और इससे गांधी के दार्शनिक व्यक्तित्व का भी पता चलता है, क्योंकि बाइबल का उनकी जिंदगी में बहुत गहरा
असर है, महत्व है, जो लोग गांधी को भारतीय कहते हैं और गांधी को नेहरू के बरक्स रख के देखते हैं और कहते हैं नेहरू पाश्चात्य और गांधी भारतीय, उनको मालूम होना चाहिए कि गांधी में शायद गीता की जितनी उक्तियां होंगी उतनी बाइबल की उक्तियां होंगी। बल्कि किसी संकट के क्षण का सामना करने के लिए फौरन ही गांधी की जुबान पर बाइबल की कोई एक उक्ति आ जाती है। और गांधी ये कहते भी हैं कि सर्मन ऑन द माउंट अगर सिर्फ बचा रह जाए, गीता में भूल जाऊं तो भी मेरे लिए उतनी ही मसरत होगी, उतनी ही आशीर्वाद मुझे मिलेगा जितना गीता को पढ़कर मिलता है अगर गीता में पूरी तरह से भूल जाऊं। लेकिन यह जो क्षण में जीने का सिद्धांत है, जिसके बारे में सोपान ने ठीक कहा कि दरअसल ये विचारधारात्मक सिद्धांत से अलग है, और वो इसलिए कि हर विचारधारात्मक सिद्धांत का एक अभिशाप है कि उसे भविष्यवादी होना है, या ये भविष्यवादी होना है या अंतवादी होना है, या आप ये कह सकते हैं कि उसे एक टेलियोलॉजिकल व्यू लेकर चलना है। उसे ये बतलाना है कि अंतिम बिंदु कहां होगा, अंतिम बिंदु पर अब पहुंचने का पूरा रास्ता बता सकते हैं कि नहीं। गांधी कहते हैं न तो कोई अंतिम बिंदु है, न अंतिम बिंदु पर पहुंचने का रास्ता बताने का दावा मेरा है। मैं जो कर रहा हूं वो अभी इस क्षण का एक उत्तर है जो मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं, खुद मैं इस क्षण को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या गांधी क्षणवादी हैं? क्या वो पूरे जीवन को क्षणों की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं? गांधी इस रूप में बहुत दिलचस्प है कि गांधी का महत्व, जैसा इसके पहले के एक यहां प्रदर्शन में बताया गया कि 150 देशों ने अपने डाक टिकटों पर गांधी को रखा है। लेकिन यह बहुत दिलचस्प है कि गांधी शायद ही बाहर की दुनिया के बारे में बहुत टिप्पणी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने नेहरू को रख छोड़ा है, यह काम नेहरू करेंगे। गांधी से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं भाई मैं जहां रहता हूं उस जगह को जानता हूं और इसलिए उस जगह को लेकर मेरी जवाबदेही है और वहीं काम करना मेरी जवाबदेही है। यहां तक कि जब उनसे यह पूछा जाता है कि आप तो यहां की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में वह सब कुछ हो रहा है, तो गांधी कहते हैं पहले मैं दिल्ली को तो सुलझा लूं तब तो मैं बाहर निकलूं। और इसलिए यह मुझे इतना अजीब सा लगता है कि एक व्यक्ति जिसको अखिल भारतीय माना जाता है वह व्यक्ति बिल्कुल स्थानीय कर लेता है खुद को। जिस समय एक भारतीय घटना घट रही है आजादी की, उस वक्त गांधी नोआखाली के हैं और कहीं के नहीं है। गांधी जिस वक्त अखिल भारतीय घटना घट रही है उस वक्त गांधी सिर्फ कलकत्ता के हैं और कहीं के नहीं है। उसी तरह गांधी दिल्ली के हैं। जब लोग उनसे बार बार पूछते हैं आप वहां क्यों नहीं जाते, आप वहां क्यों नहीं जाते, तो उनका कहना है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहीं रहना चाहिए। इसके साथ गांधी की दूसरी उक्ति जिसका जिक्र अशोक वाजपेयी जी ने किया, वो गांधी कहते हैं फॉर मी वन स्टेप एट अ टाइम इज एनफ। मेरे लिए एक समय एक ही कदम काफी है। अब ये दोनों चीजें अगर गांधी को आप नैतिकतावादी मानते हैं तो क्या यह कहा जाए कि वो एक यथार्थवादी नैतिकतावादी हैं, एक प्रैक्टिकल मॉरलिस्ट, क्योंकि वो यथार्थ को मानवीय दृष्टि के सामने रख रहे हैं। आदर्श ऐसा नहीं हो सकता है जो मानवीय दृष्टि की सीमा के पार हो। इसलिए गांधी जो पैमाना प्रस्तुत कर रहे हैं आदर्श का, वह पैमाना इंसानी पैमाना है जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, जिसके मुताबिक हम काम कर सकते हैं और जिसके अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। और गांधी की सबसे बड़ी खूबी यह है, कुछ लोग इसको रणनीति कहते हैं, लेकिन नेमेथ लास्लो जो कि हंगरी के नाटककार हैं, उन्होंने इस बात को समझा है कि दरअसल गांधी की नीति और रणनीति में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वो मैकियावेली से बिल्कुल अलग एक व्यक्ति हैं। गांधी ये कह रहे हैं कि आदर्श हर कोई हासिल कर सकता है, अपनी सीमा में हासिल कर सकता है, और मैं हर किसी को उपलब्धि का एहसास दिला सकता हूं। यहां मैं लोगों को एहसास कमतरी में नहीं डालना चाहता। इसलिए राजनीति का एक जो ख्याल है, क्रांतिकारियों ने राजनीति का ख्याल दिया, उस ख्याल में सारे लोग शामिल नहीं हो सकते थे। आपको मोमबत्ती पर, आग पर हाथ रख के साबित करना होता था बहुत बहादुर हैं। लेकिन गांधी ने औरतों को कहा चरखा चलाइए, राजनीति में शामिल होइए। यह है, खादी पहनिए, राजनीति में शामिल होइए। आप अपनी हद में रहकर, आपकी जो हद है उसके चलते मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं आप अपनी हद में एक आदर्श हासिल कर सकते हैं, अपने लिए एक आदर्श आप गढ़ सकते हैं। और इसलिए यह एहसास
कि हम सब हिंदुस्तान की आजादी की मुहिम में शामिल हैं, यह एहसास घर में बैठकर चरखा चलाती एक सामान्य औरत को भी हो सकता था। एक ऐसे आदमी को जो और कुछ न करे, सिर्फ खादी की टोपी पहन ले, उसको विद्रोह का एहसास हो सकता था। और ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जिसमें मैजिस्ट्रेट पिता के लड़के ने अपना विद्रोह सिर्फ दिखलाया है खादी का एक कुर्ता पहन के, और पिता नाराज हो गया है कि प्रेमचंद की कहानियां भी हैं इस पर। तो यह कि क्षण में जीना, एक समय में एक कदम लेना, इसमें महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है, इसमें एक यथार्थवाद है, और यह एक आदर्शवादी यथार्थवाद है। दूसरा कि यह एक तीर्थयात्री की तस्वीर आपके सामने खड़ा करता है। तीर्थयात्री जिसके लिए जरूरी ठीक है एक तीर्थ पर जाना, लेकिन जो अपनी यात्रा में आनंद लेता है। आजकल तो लोग जब पहुंचना चाहते हैं वैष्णो देवी या कहीं, तो वो हेलीकॉप्टर में पहुंच जाना चाहते हैं। इसका मतलब आप अपनी यात्रा में आनंद नहीं ले रहे हैं, जबकि यात्रा जो कि संघर्ष है, उसके हर बिंदु को जीना, उसमें पूरी तरह से आनंद लेना, उसमें पूरी तरह से अपने आप को गर्क करना, इससे सफर के मानी पता चलते हैं। और इससे गांधी के सत्य की जो अवधारणा है उसके बारे में भी पता चलता है। गांधी ये कहते हैं कोई अंतिम सत्य नहीं है, एक सत्य है लेकिन सत्य को मैं गढ़ता हूं। इसलिए और फिर वो ये भी कहते हैं कि हर धर्म के पास सत्य है, लेकिन हर धर्म सत्य को प्राप्त करने का एक अधूरा उत्तर है। इसलिए सारे धर्मों का एक दूसरे से संवाद बहुत आवश्यक है। यह अपर्याप्तता का एहसास, अधूरेपन का एहसास, यह एहसास कि आपको अपनी सीमा से निकलना है, लेकिन उसके साथ इस विडंबना का बोध कि आप जितना ही अपने अधूरेपन से निकलेंगे, आपको उतना ही अपने अधूरेपन का और एहसास होगा, और इससे एक गहरी विनम्रता सत्य के समक्ष आएगी। तो मैं सत्य को गढ़ रहा हूं, लेकिन सत्य मेरी पकड़ के में पूरी तरह से नहीं है, और इस वजह से मैं हमेशा एक यात्री बना रह सकता हूं। यह लुक एट द स्पैरोज, ये जब गांधी कहते हैं तो इससे उनके जीवन का पूरा दर्शन एक तरह से व्यक्त होता है। शुक्रिया। अभी जब अपूर्णानंद ये बता रहे थे कि कैसे गांधी ने ये एक व्यापक लोक विश्वास पैदा किया कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सीमा में रहकर कुछ ऐसा कर सकता है जो उसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाता है। उसको जुलूस में जाना या जेल जाना या झंडे दिखाना जरूरी नहीं है। मैं ये उदाहरण देने से कभी बाज नहीं आता। नमक सत्याग्रह में गांधी जा रहे हैं, एक गांव पहुंचते हैं, शाम हो गई है, अंधेरा है, एक नदी है जिसको पार करके अगले गांव जाना है। नदी उथली है, उसमें नाव नहीं चल सकती, उसमें कीचड़ है तो वो पैदल भी पार नहीं की जा सकती। तो ये तय होता है कि आधी रात को जब ज्वार में कुछ आएगा और कुछ पानी नदी में होगा तो नाव में गांधी जी और सत्याग्रही नदी पार करेंगे। गांधी जी ने तो अपनी जेब से घड़ी निकाली और जाके किसी झोपड़ी में सो गए। वो इलाका बेहद गरीब, अपढ़, विपन्न इलाका था। उसके सारे लोग जानते थे कि अगर अंग्रेज बहादुर को यह पता चल गया कि हमने गांधी का किसी भी अर्थ में साथ दिया है तो हम पर कहर बरपा होगा। लेकिन उन्होंने ये सोचना शुरू किया, इन देहातियों ने, ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कि हम अंधेरी रात है, गांधी और उनके सत्याग्रहियों को नाव में पार कराने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं, कुछ रोशनी होनी चाहिए। तो किस्सा कोताह ये कि जब गांधी जी कुटिया से अपनी जहां सो गए थे बाहर आए
तो सैकड़ों गांव वाले अपने हाथ में छोटे छोटे दिया लिए हुए खड़े थे, और उस तरफ नदी के उस पार भी खबर पहुंचा दी गई थी, वहां भी लोग छोटे छोटे दिए लिए हुए खड़े थे। मित्रों, ये बाइबल का प्रसंग लगता है, ये पौराणिक प्रसंग लगता है, लेकिन ये इस देश में 80-85 बरस पहले हुआ था कि लोग दिया लिए हुए खड़े थे, रोशनी दिखा रहे थे। हम में से अधिकांश वो सब जानते थे कि वो उन पर कहर बरपा होगा वगैरह। हम सब लोग जोखिम उठाने से डरते हुए लोग हैं। हम किसी ऐसे उद्यम में शामिल नहीं होना चाहते जिससे हमारी सुरक्षा कामिता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। हम टुच्चे सपने देखने वाले लोग हैं कि हमारा घर थोड़ा बड़ा हो जाए, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी मिल जाए इत्यादि। हम नहीं ये सोच सकते कि अगर आज कोई ऐसा जोखिम कर रहा हो, जोखिम उठा रहा हो, अंधेरी रात में नदी पार करने का एक बड़े लक्ष्य के लिए, तो हम में से कितने लोग हैं जिनको ये सूझेगा भी कि कुछ रोशनी होनी चाहिए। गांधी ने हर एक के दिल में रोशनी जगाई थी, एहसास कराया था कि तुम थोड़ी सी रोशनी दूसरों के लिए पैदा कर सकते हो, इसी क्षण में जियो पर इसी क्षण कर सकते हो। ये रोशनी जो तुम्हारे पास है, जो दूसरे की को रास्ता देखने में मदद कर सकती है। हम ये जो आयोजन कर रहे हैं, इसका एक अविवक्षित उद्देश्य आपको इस रोशनी की संभावना का एहसास कराना है। धन्यवाद। बचा है इससे का समय है, अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। हाँ जरूर जरूर, समय तो 2:30 बजे खत्म होना था। देखिए क्या समय के पाबंद लोग हैं। जब लुक एट द स्पैरोज कहते हैं तो उसके साथ एक दूसरी उक्ति है जिसको जरूर हमें याद रखना चाहिए, और वह उक्ति है बी केयरफुल फॉर नथिंग। यह भी उसी खत में वे मीराबेन को लिखते हैं, बी केयरफुल फॉर नथिंग। यह भी बाइबल की उक्ति है, और वे कहते हैं बी केयरफुल फॉर नथिंग, जिसका आगे का हिस्सा बाइबल में है, बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन लेट योर रिक्वेस्ट बी नोन मेड नोन अनटू गॉड। तो गीता में इसको दूसरे ढंग से कहा गया है। उनका कहना है कि अपनी प्रार्थना से बताओ, लेकिन ख्याल ना करो कि क्या मिलने वाला है, तो तुम अपने क्षण में जियो और अपना कर्तव्य करो। इसके साथ दूसरी बात जो जुड़ी हुई है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर रहे थे, वो ये कि जिसको नेहरू ने कहा था कि गांधी के साथ जो सबसे आश्चर्यजनक बात हुई वह यह कि उन्होंने भारत के हम साधारण लोगों को, या नेहरू कहते हैं, हम साधारण लोगों को यह यकीन दिलाया कि हम बहुत कीमती लोग हैं, और हमें उन्होंने अचानक एक बहुत ऊंचाई पर प्रतिष्ठित कर दिया। और नेहरू आगे लिखते हैं कि न सिर्फ उन्होंने ऊंचाई पर प्रतिष्ठित कर दिया, बल्कि लंबे वक्त तक हमें उस ऊंचाई पर रखा। आप रेणु के पात्र वामनदास को याद करें, अगर उनके आकार प्रकार को याद करें और देखें कि वामनदास गांधी का प्रतिनिधि है, तो उसमें यह रूपक पूरी तरह से खिलता है कि कैसे उन्होंने लोगों को कहा, तुम ऊंचाई की कामना कर सकते हो, तुम ऊंचाई हासिल कर सकते हो, तुम ऊंचाई का अभ्यास कर सकते हो। तो लुक एट द स्पैरोज में स्पैरोज की बेपरवाही है, जिसमें कहना है कि उनका अगला दाना तो खुदा ही उनको देगा, उसकी परवाही क्या करनी है। और गांधी इसलिए एक गृह त्यागी व्यक्ति थे, एक चिरंतन यात्री जिन्होंने घर नहीं बनाया और अपने लिए कुछ जोड़ा नहीं। अंत में जो निकला वो एक चश्मा था जो जब गोली लगी तो छिटक के गिर गया। उस चश्मे को हम याद करें, भले ही उसको भारत सरकार ने
सफाई अभियान का एक चिन्ह बना दिया है, लेकिन वहां से उसको निकाल लें। तो गांधी ये कहते हैं, और दूसरा, और ये भी बहुत दिलचस्प है, दूसरा उनका कहना है कि जब भी शक हो तो तुम जहां हो वहीं टिके रहो। शक में जब भी पड़ो, स्टे वेयर यू आर व्हेन इन डाउट। तो यह एक रणनीतिकार का कथन है या एक नैतिक व्यक्ति का कथन है? तीन छोटी छोटी बातें जोड़ना चाहूँगा। पहला तो जो अशोक जी ने इतना सुंदर किस्सा सुनाया, उसकी तुलना आप उस बात से कीजिए जो अपूर्व जी ने पहले कही कि बहुत असाधारण वीरता के क्रांतिकारी थे, लेकिन वो आग पे हाथ रख के शपथ दिलवाते थे। दिए नीचे से पकड़े जाते हैं और उनका उजाला ऊपर आता है। ये साधारण लोगों के लिए उजाले वाली जो बात अशोक जी ने की, और हम जिस समय में रह रहे हैं ये फ्लड लाइट का समय है। तो ऐसे समय में छोटे प्रकाश को मन में रखना, हाथ में रखना, मतलब ये असाधारण चीज़ है। दूसरी बात, पता नहीं आप लोगों ने कभी फिजिक्स वालों की और बायोलॉजी वालों के झगड़े देखे हैं कि नहीं, लेकिन वो कुछ इस तरह इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि फिजिक्स इज द सर्च फॉर द रूल्स दैट रन द यूनिवर्स, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एक्सेप्शंस। स्पैरोज इसलिए भी महत्व रखती हैं क्योंकि गांधी जी की ज़्यादातर चीज़ों में आपको बायोलॉजी दिखेगी, बहुत ज़्यादा फिजिक्स नहीं दिखेगी। उसमें इक्वेशंस आपको कम दिखेंगी, उसमें अडेप्टेशन और म्यूटेशन ज़्यादा दिखेगा। तो उसमें समय के हिसाब से ढलना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे समय के लिए शायद बहुत ज़रूरी है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि जियोलॉजी की दुनिया में ये बहस चल रही है कि जिस कालखंड को होलोसीन कहा जाता था उसको हम तमाम मान लें, और अब ये कहें कि ये एंथ्रोपोसीन आ चुका है। एंथ्रोपोसीन में एंथ्रोपो तो मनुष्य के लिए है, लेकिन वो कोई बहुत हमें खुश करने के लिए नहीं है। वो हमें ये बताता है कि हमने एकमात्र ग्रह जो हमें पता है जिस पे जीवन है उसकी ऐसी की तैसी रहती है। तो एंथ्रोपोसीन का कहीं ना कहीं लेना देना उन सभी विचारों से है जो मनुष्य को केंद्र में रख के सृष्टि को देखते हैं, और आपको ये गांधी जी में कहीं नहीं मिलेगा। गांधी जी में मानवतावाद जो कहा जाता है उसके कुछ अच्छे गुण हैं कि वो सभी मनुष्यों को बराबर मानते हैं, समान मानते हैं, लेकिन वो मनुष्य की सत्ता सृष्टि पर नहीं मानते। इसीलिए जो भी लोग पर्यावरण की बात करते हैं उनको गांधी जी बहुत मुनाफे का सौदा लगते हैं, क्योंकि और जिस समय वो लिख रहे हैं तब पर्यावरण शब्द नहीं था जो इन्वायरमेंट का अनुवाद है। इन्वायरमेंट भी तब चलन में नहीं था। दोनों डेवलपमेंट अटलांटिक चार्टर भी 41 में आ गया था, लेकिन ट्रूमैन का भाषण उस समय नहीं हुआ था जिसकी वजह से डेवलपमेंट शब्द चल निकला। डेवलपमेंट भी तब बायोलॉजी की टर्म थी जैसे विकास था। तो कुछ बहुत हद तक आप देखिए गांधी जी के जो रूपक आते हैं बार बार वो बहुत साधारण और जीवन के रूपक हैं। और आज जब पर्यावरण का संकट हम देख रहे हैं जो आज तक कभी भी मनुष्य प्रजाति ने ऐसा संकट न कभी देखा है, और ये हमारा आगे चल के नामो निशान खत्म करने का खतरा रखता है। तो ऐसे में गांधी जी बहुत काम आते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वो स्पैरो वाली दृष्टि रहती है कि हमको यूनिवर्स के अल्टीमेट रूल्स नहीं चाहिए, हमको अडेप्टेशन चाहिए जो हमारा काम चला सके। धन्यवाद। सर, आपने कहा कि गांधी जी हमें उजाले की तरफ ले जाते हैं, निश्चित रूप से, लेकिन सर हमें अंधकार पसंद है। हम अपने महापुरुषों को एक दूसरे के सामने रख लेते हैं। भगत सिंह वर्सेस गांधी। अभी सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बच्चे एक नाटक खेल रहे थे, तो मतलब सेंट स्टीफेंस कॉलेज और गांधी जी का रिश्ता सबको मालूम है। तो वहाँ पे एक पात्र कहते हैं गांधी जी वाज अ यूजलेस मैन, ही कुड नॉट सेव भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स। अब
गांधी जी बार बार लॉर्ड इरविन से मिल रहे हैं, लिख रहे हैं कि वो बच्चे भगत सिंह के पक्ष में, कि वो उनकी जो फांसी है वो ना हो। वो एडवर्ड पार्क में एक सार्वजनिक सभा करते हैं। वो दरियागंज में रहते हैं, डॉक्टर अंसारी के घर में, वहाँ से वो जाते हैं, सार्वजनिक सभा करते हैं, एडवर्ड पार्क जिसको हम सुभाष पार्क कहते हैं। और उसके बाद भी एक तरह से हम अंधेरे में रहना हमें अच्छा लग रहा है, हम चेंज होने का नाम ही नहीं लेते। ये दुखद लगता है सर मुझे कभी कभी कि हम अपने महापुरुषों की तुलना करनी शुरू कर देते हैं और उस क्रम में एक को हम नीचा दिखाते हैं और एक को ऊपर करते हैं। थैंक यू सर। अभी अंधेरे और उजाले का जिक्र चल रहा था और गांधी को जब यकीन दिलाया जाता है दिल्ली में उनका उपवास तोड़ने के लिए कि चीजें बदल रही हैं, बेहतरी की ओर जा रही हैं, तो गांधी बार बार कहते हैं मुझे मालूम है चीजें ठीक नहीं हैं, तुम मुझे खुशफहमी में मत डालो और तुम मुझे धोखा मत दो। तो गांधी यह भी कहते हैं कि आप अंधेरे को देखना सीखिए, जैसा वे कांग्रेसी लोगों को कहते हैं जब वे उनके पास आते हैं उनको यकीन दिलाने के लिए, और गांधी लगभग फटकारते हैं उनको, और गांधी कहते हैं मैं उधर जाऊंगा और मैं कंकालों से पूछूंगा कि यहां क्या हुआ था, और कंकाल तुम मुझे खबर नहीं दे रहे हो लेकिन मैं जाकर कंकालों से पूछूंगा कि यहां क्या हुआ था। तो अंधेरे को देखने की ताकत, अंधेरे का सामना करने की ताकत भी गांधी के इस सीखने से पैदा होती थी कि इस क्षण से भागना नहीं है, भविष्य के एक वायदे से अपने आप को किसी भुलावे में नहीं रखना है। और उससे दूसरा विश्वास भी, दूसरी चीज भी गांधी में पैदा होती थी, वो ये कि आप उनसे ये मांग ना करें कि आप कॉन्सिस्टेंट हैं कि नहीं। गांधी ने इस बात को कई बार कहा है, डोंट डिमांड कॉन्सिस्टेंसी फ्रॉम मी, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू माई मोमेंट, और मैं अपने समय के सत्य को खोज रहा हूं, तो मैं इनकॉन्सिस्टेंट होने को तैयार हूं लेकिन समय के प्रति अपने कर्तव्य से विरत होने को तैयार नहीं। एक और अंतिम उदाहरण जो क्षण के प्रति गांधी की प्रतिक्रिया है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा है। सेवाग्राम में गांधी बापू की कुटिया में मिट्टी के फर्श पर नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, आचार्य नरेंद्र देव इत्यादि इत्यादि बैठे हैं और ड्राफ्ट के पैरा दर पैरा ड्राफ्ट हो रहा है। और एक बच्चा आता है और गांधी जी से कहता है कि बापू तुमने कहा था कि मेरे साथ खेलोगे, चलो। गांधी जी ने बैठक स्थगित कर दी और उस बच्चे के साथ चले गए। 15 मिनट बाद लौट के आए तो सबसे ज्यादा लाल पीले सरदार पटेल हो रहे थे। सरदार पटेल ने कहा कि बापू हम एक ऐतिहासिक प्रस्ताव ड्राफ्ट कर रहे हैं और आप एक बच्चे के साथ चले गए। तो गांधी जी ने कहा कि सरदार, द रेजोल्यूशन कैन वेट, ए चाइल्ड कैन नॉट। ये भी उसी आदमी की क्षण के प्रति प्रतिक्रिया थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी, ये थोड़ी संख्या में सही, आप अंधेरे को पहचानने और रोशनी की कुछ संभावना को टटोलने यहां आए। Thank you all for being a part of Words in the Garden. It was a pleasure to have you here with us.